Thank you so much everyone for being. Acha, now a group photo. Over to Ravi Verma ji to take over the next session. Thank you. Good evening, everyone. I couldn't hear you properly. Good evening. Yes, so we are all ready, set for the powerful impact session for which we are waiting since long. Yes, the session is all about the future of Indian capital market in a deglobalized world. Friends, while we go through these sessions, while we'll be hearing our experts on this session, today at this fourth technical session, which is very apt, we are ready to dissect a profound structural shift from a hyper-globalization world to deglobalization. We all know that for long decades, our philosophy has mirrored the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. That means the world is one family, and where we are living without trade barriers, exchange of technology, exchange of capital flows. However, recently we have seen a landscape, the entire boundaries are bluntly splitting. I would like to say few lines. हंसते हुए रास्ता बनाकर चलो, हंसते हुए रास्ता बनाकर चलो, इसी से जीवन के प्रति जिंदगी है. अकेले आना और अकेले चले जाना के बीच अकेले चलना सीख जाना ही जिंदगी है. अकेले चलना ही सीख जाना की जिंदगी है. Friends, as we open our corridors from the world of globalizations to deglobalization, it is not that important that how we integrate into the world system. The importance is that how we adapt and survive when the world decides to pull apart. We will be all noticing that recently we had been hit by two major forces. The one is vulnerability, and the second one is the other side, the resilient force of Atmanirbhar Bharat. While the vulnerability still continues to volatile our market, which we all are seeing, but at the same time, the concept of resilient Atmanirbhar Bharat is the golden line for our future. And we all know that we have got eminent experts to hear on the two sides of the coin. Without which, waiting further and without delaying it anymore, I would be happy to have the experts here. Before we start the session, let me invite the chairman of the Guest Coordination Committee, C.A. Ravi Sureka, to be pleased on the dais. I now request the speaker for which we all are waiting, our eminent guest speaker, Mr. Anuj Singhal. I request all of you to please welcome him with a round of applause, Mr. Anuj Singhal, to be on the dais. And we have the another one. We are hearing the two sides of the coin, and we are having the two veterans of this capital market. The chairman of the session, Mr. Amit Jain. May I request you to please put your hands together. देखिए ऐसा है कि ये जो सेशन है ना, ये आत्मनिर्भर भी भारत की उस कल्पना को, हमारी आत्म सोच को भी प्रकट करेगा. तो एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि वी ऑल आर वेटिंग फॉर आवर आत्म मंथन. Friends, we are having today the chairman of the session, Mr. Amit Jain. And so I know that the name is itself enough for you all to know about him, but as a protocol, we welcome you to this VVD Vag 4th conference. And Amit Jain, as the name knows, that he is a renowned speaker in the financial industries,
with expertise in global economies and financial markets. He is the co-founder of Ashika Global Family Office Services, which provides a tailored financial services with a minimum investment size of $20 billion. He has over 14 years of experience in the Indian banking and financial industries. He previously has served as a business head for Indian region at Reliance Capital Group companies. His expert also saw him as a mentor on the Nexus for Asia Pacific. His area of expertise includes global economies and stock markets, entrepreneurship, and career counseling. He has been a speaker at Bombay Stock Exchange, the Institute of Chartered Accountants of India, 10KX, Startup India, amongst other, where he has shared his insights on the global financial market. His expertise has been duly acknowledged by the prominent publications such as Bloomberg, CNBC, India Forbes, Economic Times, Business Standard, amongst the other global financial institutions. Please welcome him with a round of applause once again. I now request CA Sarita Agarwal to please welcome the chairman of the session with Otrio and flower bouquet as a token of love and affection. CA Sarita Agarwal to welcome our session chairman, Mr. Amit Jain. Please put your hands together. Thank you once again for being with us here. Thank you. And we have with us, yes, the another big name. We all see him on the television. We all love to listening to his YouTube advices. But today we are having the interaction person in person. Mr. Anuj Singhal is one of the amongst India's most seasoned and popular stock market anchor. A graduate with economic honors from Delhi University and a postgraduate diploma holder in finance. Mr. Anuj has been with CNBC 18 since he has joined the channel straight out of the college in 2003. He has a track record of Indian financial markets. He has tracked the Indian financial market for over the last 2 decades and was the lead anchor for both the market flagship shows, that is Bazaar and Closing Bell on CNBC TV 18, where he headed both the research and desk team of the channel before moving on to lead CNBC team Awaaz as the managing editor in October 2022. Under Anuj's leadership, CNBC Awaaz has become the #1 business news channel. He interacts with the top honkos of the India industries and a legendary stock market investors on a daily basis. He has a wide social media presence with nearly 1 million followers across social media platforms. And today we'll get 200 or 400 odd numbers with you plus ons from this gathering. For many retail traders and investors, Anuj is the go-to person in the stock market and even nicknamed as the Nifty Magician by some of his die-hard followers. Please welcome him with a big round of applause. Welcome to this VVD BARC's 4th National Conference. Now I request CA Rajesh Jalanji to please welcome our guest speaker for this 4th technical session, Mr. Anuj Singhal, with an Otrio and flower bouquet as a token of our love and affection. Can I request you to please join your hands together once again? Thank you so much. So friends, we all know that this session is something different. We all were waiting in the previous 3 sessions. Nonetheless, all the sessions were wonderful and quite insightful for all of us to take away something with us while going back to home. But yes, this 4th session is having the dual benefit. The one is in terms of knowledge and the second is in terms of money. And we all are more concerned in terms of money, right? Am I right? Yes or no? Yes. So here, what we have designed, we have curated this session that we will have few, you can say, a scenario or the
you can say, throw some insights on the present scenario of deglobalizations. And thereafter, it will be followed by few of the questions and answers from the podium also on behalf of you. And then we will open the floor for the Q&A. So without taking too much of time, now I request the guest speaker, Mr. Anuj Singhal, to please come forward and share few of his insights for which we all are waiting. Please welcome him with a big round of applause. Mr. Anuj Singhal. Thank you, Ravi. Thank you so much. Good evening, everyone. थोड़ा सा हिंदी में बोलूं चलेगा ना, है ना? तो थोड़ा कड़वी बात से स्टार्ट करते हैं ताकि एक रियलिटी सेट इन हो जाए. कितने लोग खुश हैं इंडियन मार्केट से लास्ट 2 साल से? कोई नहीं है ना. लास्ट में 1-2 हाथ रेज हुए हैं बस. कोई बात नहीं, टीवी पे नहीं जा रहा है ये. कोई आपको ब्राउनी पार्क पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं इसके? अच्छा लगता है इन्वेस्ट नहीं किया इसलिए खुश हैं. हाँ, शॉर्ट तो नहीं किया था. नए इन्वेस्टर हैं. हाँ, तो नए इन्वेस्टर में थोड़ा जोश होता है थोड़ा सा इसकी वजह से, है ना. अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि हमारी मार्केट ने बहुत अंडर परफॉर्म किया? हैंड ऑन हार्ट. सब हर कोई, है ना. और कितने लोगों का पोर्टफोलियो पीक से कम 15-20% तो डाउन है? सभी का. तो एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे एटलीस्ट सब लोग जो है ऑनेस्ट हैं, कैंडिड हैं, तो एक ऑडियंस को एड्रेस करने में मजा आएगा, है ना. स्वदेश का वो डायलॉग याद है मुझे, जब भी उसकी याद आती है मैं हमेशा बोलता हूँ. उसमें शाहरुख खान से पूछते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है? तो शाहरुख खान बोलते हैं नहीं, मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन हमारे अंदर पोटेंशियल है. अब मेरा भारत महान सिर्फ बोलने से नहीं बनेगा, हमें बनाना पड़ेगा. और फैक्ट यही है कि हमारी मार्केट, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. पिछले हफ्ते आपको पता है ताइवान का मार्केट कैप इंडिया से ज्यादा हो गया. ताइवान की पॉपुलेशन कोलकाता जितनी होगी या मुंबई जितनी होगी. मेरे ख्याल से 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है ताइवान की. हम 140 करोड़ का देश हैं. ताइवान की मार्केट हमसे बड़ी हो गई है. कोरिया की मार्केट पिछले 2 साल में कितनी बड़ी है? कह सकते हैं आपकी 2 ही स्टॉक की मार्केट है, लेकिन जो भी है, सैमसंग का प्रॉफिट पूरे इंडिया के प्रॉफिट से ज्यादा है. एक कंपनी का प्रॉफिट. कोरिया की पॉपुलेशन कितनी है? आई थिंक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली को मिला दो उससे कम होगी. तो कहीं ना कहीं आई थिंक हम, ठीक है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट, सब तो खैर 5th हो गए हैं, वो डॉलर इतना वो रुपये इतना गिर गया है तो उस वजह से डॉलर टर्म्स में. लेकिन 2 साल पहले अगर ये सिनेरियो रखा होता हमने कि इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बड़ी इकोनॉमीज में से होगी, उसके बावजूद इंडिया का मार्केट रिटर्न इस तरीके का होगा, तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है. लेकिन फैक्ट ये है कि ऐसा हुआ है. जबकि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जीडीपी ग्रोथ कॉन्स्टेंटली 7-8% के बीच में हमारी, गवर्नमेंट कैपेक्स काफ़ी स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम हुआ है, वो सब दिखाई दे रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर काफ़ी काम हुआ है. मगर रिटर्न्स क्यों नहीं बने हैं स्टॉक मार्केट में? एक्सेप्ट फॉर फ्यू सेक्टर्स हेयर एंड देयर, लार्जली. अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि क्वालिटी लो. कौन सा क्वालिटी स्टॉक? अभी कोई इन्फोसिस का 5 साल का रिटर्न नेगेटिव है. HDFC बैंक का 5 साल में उनकी FD ने ज़्यादा रिटर्न बना दिया होगा उनके स्टॉक से. 5 साल में HDFC बैंक में 0 रिटर्न है. TCS नेगेटिव रिटर्न्स. मतलब क्वालिटी स्टॉक्स में भी. और ऐसा नहीं है कि मैं पिछले 3 महीने का 6 महीने का डेटा आपको बता रहा हूँ. 3 साल का डेटा देख लीजिए, 5 साल का डेटा देख लीजिए आप. तो कई केसेस में तो इवन जो कोविड वाले लेवल्स थे हम वहां पे आ चुके हैं कई केसेस में. खैर वो तो बिल्कुल ही बीटन डाउन लेवल्स थे. लेकिन एक कोट है, मार्केट्स डोंट पनिश बैड कंपनीज, मार्केट्स पनिश गुड कंपनीज दैट फेल टू जस्टिफाई एक्सपेक्टेशंस. और भारत के साथ यही हुआ है. भारत खराब नहीं है, लेकिन भारत की जो एक्सपेक्टेशंस थी हम
उनको फुलफिल नहीं कर पाए। मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम स्टूडेंट्स थे तो स्कूल के रिजल्ट्स आते थे, तो मैं था और मेरे 2 बड़े भाई थे। तो पापा पूछते थे बेटा कितने आए तेरे मार्क्स। मैंने कहा पापा 63%। पापा बड़े खुश, ये ले तेरे लिए चॉकलेट। फिर मेरे बीच वाले भाई से पूछते थे कि कितने आए तेरे मार्क्स। वो बोलते हैं पापा 92%। पापा कहते क्या बेकार नंबर लेकर आया है। वो फिर सबसे बड़े भाई से पूछते थे तेरे कितने आए। बोलता था पापा 97%। पापा कहते 99 क्यों नहीं आए तेरे। क्योंकि मेरे से एक्सपेक्टेशन थी कि मैं 50% लाऊंगा, लेकिन मैं लेके आ गया 63। तो वो खुश हैं। मेरे बड़े भाई से एक्सपेक्टेशन थी कि वो 95 लाएगा, वो 90 लाया, थोड़े दुखी हैं। और सबसे बड़े भाई से एक्सपेक्टेशन थी कि वो 99 लाएगा, तो 97 आया, तो भी दुखी हैं। तो अभी इस समय एक्सपेक्टेशन हमारी मार्केट से इतनी ज़्यादा थी कि भाई बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छे सब यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब 12-12 घंटे लोग काम करते हैं। यूरोप में आप गंदी से गंदी कोई मार्केट पिक कर लीजिए, मतलब जिसे कहते हैं एकदम बिल्कुल जो सबसे गॉन केसेस हैं, वहां भी 30-30, 40-40% के रिटर्न्स मिले हैं। मतलब साउथ ईस्ट एशिया में देख लीजिए किस तरीके के रिटर्न्स मिले। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने इंडिया में कोई पर्टिकुलर अगर एक बीएसई उठा लिया होता अगर, या फिर एक हिटाची चुन लिया होता अगर, ऐसे अगर 5-6 स्टॉक्स की बास्केट बना ली होती, तो वो बहुत फिर वो लक की बात थी कि वो उस तरीके का पैसा बन गया। लेकिन देखिए अब नेगेटिव बातें सारी हो गई, अब थोड़ी सी पॉजिटिव बातें करते हैं। आगे का क्या, मेरा मानना यह है कि हमको ना थोड़ा सा अब आगे सोचने की ज़रूरत है कि कैसे इस अंडर परफॉर्मेंस को हम ख़त्म कर सकते हैं। एंड आई थिंक उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा अर्निंग्स ग्रोथ। अर्निंग्स ग्रोथ हमारे यहाँ मिसिंग है पिछले कुछ क्वार्टर से। इस क्वार्टर में आनी शुरू हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए। उन्होंने एकदम से सही टाइम पे एकदम गाड़ी एकदम से पटरी पे आ रही थी, उन्होंने पंक्चर कर दी गाड़ी। ये ईरान वाली वॉर जो लाकर, और उसके बाद उसकी वजह से क्रूड 110-115 पर आ गया। खैर कभी तो खत्म होगी ये लड़ाई, होपफुली अगले 1-2 महीने में। अब तो 60 दिन का ट्रूस भी आ गया, तो उसकी वजह से कभी ना कभी तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। एंड आई थिंक एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ पर ना एक थोड़ा सा इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो कैपिटल गेंस टैक्स है उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये देखिए जो टैक्स लगाया गया, अब क्या है कि बहुत लोगों को लगता है कि कैपिटल गेंस से स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने में कोई टैलेंट नहीं है। किसी ने कही थी ये बात, किसी बाबू ने कही थी ये बात ना, कि स्टॉक मार्केट में काम करके कोई टैलेंट थोड़ा ना लगता है। तो टैलेंट नहीं लगता तो टैक्स क्यों करते हो आप। मतलब लॉस हो गया तो कोई कुछ नहीं, किसी ने इतनी मेहनत करके अगर पैसा कमाया तो उस पर टैक्स लग गया। और आई थिंक फ्रॉम FII पॉइंट ऑफ व्यू दैट हैज़ बीन द सिंगल बिगेस्ट रीज़न कि हमारे मार्केट ने इतना आउटफ्लो देखा है। क्योंकि वी आर नॉट गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, ऐसा नहीं है। हमसे कहीं अच्छी मार्केट FIIs को मिल रही है जहाँ पर कहीं से कहीं ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी है और हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ है। उनकी खुद की मार्केट US मार्केट में आप देखिए एनवीडिया जैसी कंपनियां किस तरीके के नंबर्स डिलीवर कर रही हैं, और एप्पल जैसी कंपनियां कैसे नंबर्स डिलीवर कर रही हैं। ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप कंपनियां 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रही हैं। हमारे यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लैश आता है इन्फोसिस कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ स्लाइटली बेटर। क्यों स्लाइटली बेटर, क्यों? वी एक्सपेक्टेड -2%, देव डिलीवर्ड -1.5%। खुश होकर ताली बजाओ सब, बहुत अच्छी बात है। अब वहाँ पे बात हो रही है कि 20%, 25%, ये फेसबुक, मेटा, ये सब कंपनियां, मतलब ये क्या एप्पल क्या ग्रो कर रही हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो आई थिंक थोड़ा सा हमको उन सब पर काम करने की ज़रूरत है। अब बहुत लोग कहेंगे कि आप इतना कर रहे हो तो आप ही कुछ कर लो, मुझसे तो नहीं हो सकता था, तो मैं तो एंकर बन गया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी होप है कि जो एटलीस्ट नेक्स्ट जेन है वो कुछ अच्छा करेगी हमारे लिए, और कुछ अच्छी नई कंपनियां कुछ लेकर आएंगी। लेकिन इसमें मेरा एक और चीज़ मानना ये है कि वी आर वेरी क्लोज। अभी हम लोग काफ़ी होम ग्रोन IPOs, काफ़ी होम ग्रोन, अब जैसे अर्बन कंपनी है, जेप्टो है, जोमेटो है, ये सब जो चीज़ें हैं, इवन ओला फॉर दैट मैटर, भले ही स्टॉक ने कुछ भी किया हो, लेकिन कम से कम लोग कोशिश तो कर रहे हैं एक नए नए बिजनेसेस बनाने की। ये अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा आई थिंक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अब काफ़ी अच्छा है। पिछले 3-4 साल में मार्केट ने बहुत कुछ झेला है। और देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं स्क्रीन देखकर एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, स्क्रीन आपको बहुत कुछ बता देती है।
पिछले 3 महीनों में, चलिए मार्च को भूल जाइए, मार्च में तो बहुत बड़ी बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद आपने नोटिस किया होगा मार्केट कोलैप्स नहीं होता है, गिरता है मार्केट लेकिन कोलैप्स नहीं होता है, लोअर लेवल पर रिकवरी आ रही है। कम से कम मार्केट एक कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़े होने की इस समय एक कोशिश हो रही है यहाँ पर। ऑब्वियसली कल की बात नहीं करते हैं, कल तो लास्ट के 1 घंटे में बहुत बुरा सीन था, लेकिन पूरी की पूरी MSCI सेलिंग थी। ये एक और फैक्टर है। आपको पता है इस समय इंडिया का वेट कितना रह गया MSCI में? एनी गेसेस? 11%। और अभी अगले 6 महीने में कितना हो जाएगा? फॉर द फर्स्ट टाइम सिंगल डिजिट्स में। हमारा पीक पता कितना था? 20%। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है। अब जो मार्केट अंडर परफॉर्म करेगी उसका वेट अपने आप कम हो जाएगा, जो मार्केट अच्छा कर रही है उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो लेकिन हम कहीं ना कहीं उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां पर अब हमारी मार्केट में एक इंक्रीमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट आना बंद होगा। एंड थोड़ा सा एक हमारे यहाँ पे थोड़ा सा होता भी ऐसा ही है ना, बच्चा तभी पढ़ता जब पता चलता अगले दिन एग्जाम है, उससे पहले वो तो हमारी भी हालत ऐसी है। अभी कुछ ना कुछ सबको करना पड़ेगा मिलकर। आई एम होपिंग एंड आई एम प्रेइंग कि कैपिटल गेन्स टैक्स पे भी कुछ काम होगा, अर्निंग्स ग्रोथ भी लौटेगी एंड होपफुली अगले 3-4 साल मार्केट के लिए अच्छे रहेंगे। और आप सब से जब मैं अगली बार आऊँगा और पूछूंगा, यही सवाल पूछूंगा कि आप में से कितने लोगों को मार्केट अच्छी लग रही है, तो जो अभी सबने हाथ खड़े किए तो वही लोग वापस हाथ खड़ा करेंगे। और होप करूंगा मैं कि आप सब लोगों का अगले 2-3 साल में स्टॉक मार्केट में पैसा कम से कम 40-50% तो बढ़े, और ज़्यादा बढ़ जाए तो और अच्छी बात है। जो पिछले 2-3 साल की कड़वी मेमोरीज रही हैं वो थोड़ा सा हम भूल के थोड़ा आगे बढ़ेंगे, होपफुली ऐसा होगा। बाकी आई एम स्टिल हेयर, वी आर ऑफ कोर्स गोइंग टू हैव सम मोर कॉन्वर्सेशन, बट थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। और आपने हमारी बात कह दी कि मार्केट गिरता है तो हमारा दिल भी धड़कता है, तो बस उस बारे में इतना ही कहूंगा कि तू चल अपनी मतवाली चाल में, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर कभी कभी मुड़ा भी कर। तू चल अपनी मतवाली चाल में, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर कभी कभी मुड़ा भी कर। तू गिर जाता है तो गिर जा, इसमें भी ऐतराज नहीं, पर जितनी जोर गिरता है उतनी जोर उठा भी कर, उतनी जोर उठा भी कर। हमारा तो दिल ऐसा ही होता है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर सेशन चेयरमैन मिस्टर अमित जैन टू प्लीज शेयर इनसाइट्स, एंड देन विल हैव question answer from the podium followed by the Q&A from public. Please welcome him with a big round of applause, Mr. Amit Jain. Thank you everyone. And can I use this mic? ये ले लो अमित भाई, ये ले लो, ये दिस इज वर्किंग। Hello. Yeah, it works. Hi. Thank you, everyone. I think thank you so much for calling us here, inviting us here for this event, and special thanks to Rajendra ji and everyone in the team for inviting us here. I think Anuj bhai, thank you so much. आपने बहुत मेरा काम आसान कर दिया, इतना आपने पूरा बता दिया। But I'll just try to add जो अनुज भाई ने कहा कि ये जो यूरोप का मार्केट है, आप में से कितने लोगों ने ग्लोबल मार्केट को स्टडी किया है पिछले 1 साल के अंदर? रिटर्न देखे हैं? किसी ने नहीं देखे हैं? आपने देखे हैं एक, ठीक है। और किसी ने? यूरोप का जो वर्स्ट से वर्स्ट मार्केट है, मतलब जो कंट्रियां ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी हैं, उन्होंने करीबन 40 से 60% का रिटर्न दिया है डॉलर टर्म में, नॉट देयर करेंसी, इट्स अ डॉलर टर्म रिटर्न, राइट। सो इंडिया का जो अंडर परफॉर्मेंस है, जिसका शायद हम सब लोग आज पेन की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा पेन है हमें लगता है, और उसका एक कारण है कि ऐसा क्यों हुआ। ऑल्दो ये थोड़ा पोस्टमार्टम है, बिकॉज हम लोगों की मुलाकात शायद पहले नहीं हुई, बट पोस्टमार्टम में रीज़न ये है कि सितंबर 2024 के अंदर इंडिया का जो निफ्टी का वैल्यूएशन था, उसका पी था करीबन 27 का पी था, और यूरोप की मार्केट्स का पी, यूरोप एंड रशिया आज भी 5 की पी पे अवेलेबल है। रशिया का इंडेक्स जो है आज भी 5 की पी पे अवेलेबल है। यूरोप का जो पी था मार्केट का, इट वाज फ्रॉम 7 to 11 टाइम्स ऑफ अर्निंग। तो ये मार्केट ने
5 साल तक अंडर परफॉर्म किया यूरोप ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने, तब इंडिया का टाइम ऊपर चल रहा था। और जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो स्विच टाइमली कर लेते हैं। उनको पता है कि बॉस ओवर वैल्यूड है तो मुझे बेचना है, अंडर वैल्यूड है तो मुझे खरीदना है। हम लोग स्टॉक्स में ये काम करते हैं, एफआई कंट्रीज के अंदर वाला काम करते हैं। जो कंट्री महंगी हो गई उसको बेच दिया और जो सस्ती है उसको खरीद लिया। सो देयर इज अ रीजन टू इट कि यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में इतना अच्छा रिटर्न क्यों बना लोगों का। उसका रीज़न था कि हमारा मार्केट बहुत महंगा था। इनफैक्ट हमारे जितने मीडिया इंट्रैक्शन थे उस वक्त, अगर आप सर्च करेंगे हमारे नाम पे, तो हम लोगों ने क्लियरली एग्जिट एडवाइस किया था एंड वी एग्जिटेड द मार्केट। सो हमें लगता है, इनफैक्ट आई विल कम बैक टू द टॉपिक, जैसा टॉपिक है द डी ग्लोबलाइज वर्ल्ड एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये जो डी ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, इसके अंदर एक चीज़ हम सबको लर्न करनी पड़ेगी। हमने लर्न कर ली है एंड वी आर हेयर टू शेयर आवर लर्निंग विद यू, कि आपको एक नया प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग का फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्ट राइटली, स्विच टाइमली। अगर आप स्विच टाइमली नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया आज से 40-50 साल पहले एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी था, फिर हम डेवलपिंग इकोनॉमी बने, अब हम ऑलमोस्ट एटलीस्ट जीडीपी के नंबर के अंदर हम डेवलप्ड इकोनॉमी के बराबर हैं। वी आर द 4th और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं सोचता हूं कि मैंने एक प्लॉट लिया था 30 साल पहले, ठीक है, और वो 30 साल में 100 गुना हो जाएगा, तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अंडर डेवलप्ड नहीं हूं। और हर इकोनॉमी में ये साइकिल आता है। इंडिया का साइकिल हम सब लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट हमारी जनरेशन देख रही है। यही साइकिल पहले यूरोप में और जापान में था। 1950s से लेके और 1980s तक जापान और यूरोप ने पूरे वर्ल्ड को रूल किया, राइट? वो उनका साइकिल था। सन 2000 के बाद साइकिल आया इंडिया और चाइना का, जब से WTO शुरू हुआ, राइट? उसके बाद इंडिया, चाइना और एशिया का साइकिल शुरू हुआ। तो ये सिक्लिकल है सारी चीज़ें। एसेट क्लास भी साइकिल में काम करते हैं, इकोनॉमिक्स भी साइकिल में काम करते हैं। तो हमें एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर अगर डी ग्लोबलाइज वर्ल्ड में पैसे कमाने हैं तो हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, व्हाट वी कॉल इन्वेस्ट राइटली, स्विच टाइमली। कभी आपको कंट्रीज की स्टॉक मार्केट स्विच करनी पड़ेगी, कभी एसेट क्लास शिफ्ट करना पड़ेगा, कभी आपको इक्विटी से गोल्ड में जाना पड़ेगा, कभी गोल्ड से वापस इक्विटी में आना पड़ेगा, और कभी इक्विटी से रियल एस्टेट में जाना पड़ेगा। बट आई थिंक दिस इज द फंडामेंटल रूल नाउ। एक ही चीज में बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करके पैसा बनने वाला नहीं है, दैट आई कैन अश्योर यू फॉर दिस। सो आई थिंक दिस इज द लर्निंग विच वी हैव, एंड आई थिंक अनुज भाई के कॉन्टेक्स्ट से मैंने चीज को सेट कर दिया कि अभी इस डी ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अगर पैसा बनाना है तो स्विच टाइमली करना आना चाहिए, एंड आई थिंक रेस्ट ऑल ही हैज ऑलरेडी कवर्ड ऑन इट। थैंक यू सो मच। Hello. Yeah. Yeah. So now we'll have few questions. I am sure that all of them must be having some few common questions, which I would like to raise on behalf of them, and then we'll open the forum for the Q&A with the gathering as well. So, like first question, I will have would like to hear from the guest speaker himself. एक बेसिक अगर सिनेरियो में बात करें तो इन द जनरल ट्रेंड रिसेंटली सिंस वी हैव डिस्कस यू एंड Amit Jain sir also has shared insights on the current geopolitical tensions as well as the rising concern, be it the FPI inflows in the market and the position of India, that how it centralized itself, distinct position. One common question that is running in the mind of us everyone, ki what will be the next in the market? Where do you see where do you see the market in the next 6 to 12 months? ये market कैसा रहेगा? ऐसे ही चलते रहेगा या कोई पोजीशन लेगा या शुड वी इन्वेस्ट? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? ओके, तो इसमें ना मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। एक बजट के बाद ना एक पार्टी होती है स्टॉक मार्केट के बिगीज की, तो उस पार्टी में नॉर्मली मार्केट के में क्या चल रहा है ना थोड़ा सा पता चल जाता है। तो इस बार जब वो पार्टी हुई उसके बाद जब मैं वापस आया तो किसी ने पूछा कि तो क्या निकल के आया पार्टी में? बोले सब एक दूसरे की शक्ल देख के पूछ रहे थे कि मुझसे पहले कौन बेच के निकल गया इस मार्केट में। तो
इस समय मार्केट का यही हाल है, हर कोई ये देख रहा है कि कौन बेच के निकल गया पहले। देखिए 6 महीने में क्या होगा, 12 महीने में क्या होगा ना, किसी को नहीं पता। और सच बताऊं तो हमें मार्केट की प्रिडिक्शन अब बंद कर देनी चाहिए। मैंने बंद कर दी, क्योंकि मैंने पिछले साल एक प्रिडिक्शन की थी, वो आज तक मेरे ऊपर एक वो बोझ बनी हुई है, ठीक है, और बहुत ट्रोलिंग होती है मेरी उसकी वजह से। तो मैंने तो प्रिडिक्ट करना बंद कर दिया मार्केट को। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं आपको बता भी दूँ ना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 1 साल बाद सपोज करिए निफ्टी यहाँ पर होगा, उसके बाद भी लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। तो पैसा कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस। मेरा मानना ये है कि भारत में अब इस समय मिड कैप में और स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोगों को ना निफ्टी का फैसिनेशन छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि निफ्टी के साथ दिक्कत क्या आ रही है कि निफ्टी में जो हमारा कंपोनेंट्स है ना, वो सारे के सारे ना एकदम एक सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं उनमें कोई ना कुछ प्रॉब्लम है। निफ्टी में आप देखें तो आईटी स्टॉक्स चलने को तैयार नहीं है। आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, या तो एनपीए बढ़ जाता है, नंबर खराब आते हैं, या फिर एफआई बेचने आ जाता है उनको हायर लेवल पर। एलएनटी चलना शुरू करता है, वो लड़ाई हो गई वहाँ पर, वो उसका इम्पैक्ट आ गया उसके ऊपर। तो ऐसा कुछ इंडेक्स में कोई एक पर्टिकुलर स्पेस नहीं है। ऑटोज में बड़ी रैली हो रही थी जीएसटी कट के बाद, तेल महंगा हो गया, मेटल्स महंगे हो गए, एकदम से एक रिस्क आ गया अर्निंग्स पर। तो निफ्टी में मुझे नहीं लगता कि आप कुछ प्रिडिक्ट कर पाएंगे। एक मार्केट निफ्टी में एक रेंज में है, एक मेरे को लग रहा है कि एक रेंज में ही रहेगी निफ्टी, कहीं जाने वाली नहीं है अगले 6 से 12 महीने में। ये एक ऑप्शन राइटर की मार्केट है। अगर आप देखें तो दिसंबर एंड के जो ऑप्शंस हैं, बहुत लोग उनको बेच के पैसा बना रहे हैं। ऑब्वियसली सबकी उनकी स्ट्रेंथ है तो वो कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स मुझे नहीं लगता कहीं जाने वाला है यहाँ से। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पिछले 2 महीने में ना भारतीय मार्केट में एक स्टेल्थ बुल मार्केट चल रही है। वैसे अगर आप देखें इंडिविजुअल मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप ने कल भी नया ऑल टाइम हाई लगाया है, बाद में कोलैप्स हुआ, लेकिन ऑल टाइम हाई तो लगाया एक बार के लिए, है ना। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढे यहाँ पर, थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप में। मैं 2024 में मिड और स्मॉल कैप पे काफ़ी बेरिश हुआ था, क्योंकि वो वैल्यूएशन बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन हो गई थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो ठीक हो गई है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे वीक सेक्टर क्या है हमारा इस मार्केट में, आईटी। लेकिन आईटी में ही अगर आप देखें 2-3 मिड कैप ने शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। ओएफएसएस 40% ऊपर है, कोफोज 35% ऊपर है, टाटा टेक 20-25% ऊपर है लास्ट के 2-3 महीने में। तो सेंस बन रही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इन पे फोकस करें। निफ्टी पे तो आप मुझसे पूछने से अच्छा किसी बंदर को डांट पकड़ा देंगे ना, वो बंदर डांट फेंकेगा जहाँ पे, उसका ट्रैक रिकॉर्ड शायद मेरे ट्रैक रिकॉर्ड से बेटर निकलेगा आज की डेट में। सच बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगा आज की डेट में निफ्टी कहाँ जा रहा है, क्योंकि कोई नहीं बता पाएगा आपको। Very true, sir. So my same question with some modification goes to you, sir, Session Chairman Amit Jain, sir. Like, will you endorse the same view that Nifty is unpredictable at this moment and that we should eye for a small and mid cap investment? And if a small and mid cap investment, तो एक और general query आती है, sir ने बोला IT sector, yes, obviously, recently we can see some off trend in the IT. But what are the other segment, given the situation of this geopolitical situation and then rising risk? What are the safe segment that one should eye for, and what are the promising sector in Indian capital market? देखिए, पिछला जो 30 साल है वो इंडिया का निफ्टी भी अगर हम बात करें, हर इंसान ने पैसे कमाए हैं जिसने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में इन्वेस्ट किया या बिजनेस किया है। जैसे निफ्टी के अंदर ही निफ्टी आईटी ने सर 1996 से लेके 2024 तक आईटी इंडेक्स ने 24% का कैगर दिया है। मतलब 30 साल तक 2% महीने का ब्याज दिया है, कंसिस्टेंट विद सेफ्टी। ठीक है, तो ये एक फेज था जहां पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड के एक सिनेरियो में चल रहा था। बट पोस्ट कोविड या आप पोस्ट कोविड या ये जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वर्ल्ड काफ़ी डीग्लोबलाइज हो गया है। तो ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं ये शायद उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे, इवन फ्रॉम अ 5-year पर्सपेक्टिव और 10-year पर्सपेक्टिव, बिकॉज हर कंट्री अपने आप को इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफाइज करना चाहती है अभी। सो आई थिंक हमारे हिसाब से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को अगर हम शिफ्ट करते हैं उन सेक्टर्स के साथ
जो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि मैं एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करूं और इंपोर्ट कम से कम करूं। तो जो भी बिजनेसेस इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करते हैं, आई थिंक वो बेस्ट बिजनेस इमर्ज होंगे यहाँ से फ्रॉम हेयर ऑन। और ये लॉन्ग टर्म कॉल है, 5 से 10 साल का। जैसे आईटी में लोगों का 20 साल पहले व्यू था आईटी चलेगा, अब आईटी 10 साल के व्यू से नहीं चलेगा, ठीक है। सो हमें देखना पड़ेगा कि हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने वाले सेक्टर्स में पैसा हम कैसे लगा सकते हैं। और जहाँ तक रहा निफ्टी का सवाल, मुझे लगता है जैसा मैंने कहा कि पहले यूरोप का मार्केट 7 से 11 की पी पे था और इंडिया का मार्केट 27 की पी पे था। अब इंडिया का मार्केट भी 20 से 21 की पी पे आ गया है और वो यूरोप का मार्केट भी अब 7 की पी पे नहीं है, अब वो भी 15-16 की पी पे आ चुका है। तो वो जो गैप था वैल्यूएशन का वो अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो हमें ये लगता है कि ये एक लास्ट लेग है इंडिया के बेयर मार्केट का फ्रॉम अ लार्ज कैप पर्सपेक्टिव। एंड अगर इसमें कुछ कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आ जाते हैं जिसकी मॉडलिंग हम सुन रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वो एफआईआईस के रिटर्न करने में काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है उसके अंदर। तो ये लास्ट लेग है, आप मान के चलिए 6 महीने बाद या जनवरी 2027 से एक इंडिया के अंदर एक नया बुल रन शुरू होने की चांसेस हैं, अगर कैपिटल गेन में थोड़ा रिलैक्सेशन आता है और इंडिया का वैल्यूएशन और अर्निंग कैचअप हो जाता है। अगर तो बिकॉज वैल्यूएशन तो फेयर है बट अर्निंग, जैसे अनुज भाई कह रहे थे, अर्निंग ऑल्सो हैज़ टू कैचअप। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आई एम श्योर वी कैन हैव अ नेक्स्ट बुल मार्केट फ्रॉम 3 to 5 year perspective. Thank you, sir. Thank you for sharing this. Like now coming to the Indian capital market, as you are saying, the capital issue or capital gain is remaining a one challenge, and going forward from 6 months onward, maybe it may be 1 year. We can presume the situation seems to be the steady one. The turbulences phases which we are having from tweets nowadays will no longer be there. What are the biggest challenges which Indian industry will continue to face if this deep globalization phase continues? Because we don't know, it's a complete uncertain environment. आज हम बात करते हैं, रात को एक ट्वीट होती है या स्पीच होती है, कल पूरा मार्केट वोलेटाइल इधर से उधर हो जाता है। तो what are the biggest challenges we are seeing in the capital market as of now? I think the biggest challenge right now is supply, because see, it's not as if for 6 months we can't buy crude at 110. We can, right? The problem is ki where will we get the crude from? Because Hormuz is closed, right? And what is the other way? I mean, Russian oil you can't buy because you had signed that deal with US that prohibits you from buying from Russia. तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज आने वाला है कि कच्चे तेल की सप्लाई कैसे होगी। और ये जो पिछले 4 महीने हैं ना, ये वर्ल्ड को बदल देंगे पूरी तरीके से। ये हर देश जो है ना, अब सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा खुद की। मतलब अगर उनके पास होगा भी तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, पहले अपने पास रखना चाहेंगे कि हमारे देश की सिक्योरिटी जो है वो पूरी हो जाए। अब जैसे हमारी एलपीजी है, हमारी एलपीजी क्या आती है, पूरी की पूरी मिडिल ईस्ट से आती है। हमारे यहाँ खुद नहीं बनती है एलपीजी, हम डायरेक्टली सोर्स करते हैं, राइट। तो बीच में एक फेज आया जिसमें हफ्ते 10 दिन में सप्लाई को लेकर इशू हो गए थे, एलपीजी ही नहीं मिल रही थी। मुंबई में एक रेस्टोरेंट है लाडू सम्राट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन देयर, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट सर्व करता है वो 1 हफ्ते के लिए बंद हो गया था। मतलब अनइमेजिनेबल था, वो कोविड में बंद नहीं हुआ था, यहाँ बंद हो गया। मतलब तो ये चैलेंज है सबसे बड़ा। आई थिंक हम लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं तेल का प्राइस इतना है, तेल की सप्लाई है या नहीं है हमारे पास। आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा। और आई थिंक डॉलर रुपये जिस तरीके से भागा है, एक और चीज़ पहले क्या था, हमारा गोल्डीलॉक्स सिनेरियो था, $60 का क्रूड था और हमारी सारी आईटी कंपनियां भर भर के डॉलर ला रही थी। अभी क्या हो गया, क्रूड हो गया 120 का, और जो हमारी कंपनियां वो जो डॉलर्स ला रही थी उनकी रेवेन्यूज बुरी तरीके से गिरे, तो वो डॉलर में रेवेन्यू आना भी बहुत कम हो गया है। तो वो ट्विन चैलेंज जो है ना हमारे, इसीलिए तो हमारा करेंसी एकदम से अगर आप देखेंगे ऐसा लग रहा है इट इज ऑलमोस्ट रन ऑन द करेंसी। 90 से 97 हम कितनी फास्ट गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा देश के मार्केट। Right, sir. So one on the side, the foreign influx, and the other side, the supply chain, which continues to be disrupted because of the global environment that we are facing. Sir, my question will be to you, Mr. That from a layman's shareholder or investors, you can see,
what should be the strategy nowadays? Because जैसा कि हम सुन रहे हैं अभी कुछ situation ऐसी still we continue that to say that these are unpredictable. We don't know because of the policy changes, maybe the ongoing geopolitical tensions. What are the strategy investors should use in the market for the next at least 6 months or 1 year till the market is steady? Whether he should continue to invest, whether he should look for trading, whether he should be on the safe side to go for mutual fund, etc. So what are the strategy that you would suggest to a common investor? मार्केट में 6 महीने का व्यू देना तो मुश्किल होता है, बट स्टिल विल ट्राई कि 6 महीना हमें लगता है कि मार्केट में अभी टर्बुलेंस रहेगा, बिकॉज अक्टूबर नवंबर में देयर इज अ मिड टर्म इलेक्शन फॉर यूएस, राइट. एक वो रिस्क है मार्केट के अंदर. दूसरा, जहाँ तक मैंने जब से करियर शुरू किया है अपना फाइनेंशियल मार्केट का, पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो यील्ड है वो तो लगभग है 5%, यील्ड है 5%. और नैस्डैक जो स्टॉक मार्केट है उसकी यील्ड है करीबन 3%. मैं शायद डिफरेंस समझा नहीं पा रहा हूँ या आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं. मतलब अगर आप 100 रुपये लगाते हैं बॉन्ड के अंदर तो आपको मिल रहे हैं 5 रुपया यूएस के बॉन्ड के अंदर. लेकिन अगर आप यूएस की स्टॉक मार्केट में 100 रुपये लगाते हैं तो आपको मिल रहा है 3 रुपया. मतलब जो रिस्की है वो कम रिटर्न दे रहा है और जो सेफ है वो ज्यादा रिटर्न दे रहा है. ये बहुत बड़ी डाइकॉटमी है, बहुत बड़ी डाइकॉटमी है. एंड हमें लगता है कि इसका आंसर बहुत जल्दी हमें मार्केट में मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प साहब बहुत ही, आई थिंक वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम ट्रेडर हैं, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है. ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है. सो अभी उन्होंने मार्केट बहुत अच्छा मैनेज कर रखा है, बिकॉज अभी करीबन $3 ट्रिलियन के आईपीओ आने हैं यूएस मार्केट में. और जब तक एलन मस्क साहब या जो उनके 3-4 जो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, जब तक उनके आईपीओ आ नहीं जाते हैं तब तक ईरान वॉर में डेली 60 डेज, 30 डेज, 45 डेज का सीज फायर चलता रहेगा. ये तीनों आईपीओ आप आने दीजिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यूएस मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आएगा. जब वो करेक्शन आएगा तो इंडिया में भी करेक्शन आएगा. उस वक्त जो है आप जितना आप खरीदना चाहें इंडिया के मार्केट को आप खरीद सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. अब उस समय तक क्या करें? उस समय तक प्लीज पार्क योर मनी इन सेफ्टी. आप इनवीट में लगाएं, रीट्स में लगाएं, एफडी में लगाएं. और लार्ज कैप के अंदर कोई अच्छे स्टॉक आपको लगते हैं, भैया आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, अगर आपको लार्ज कैप में कोई अच्छे स्टॉक लगते हैं आप उनमें भी ट्रेड कर सकते हैं. बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा नामुमकिन है कि यूएस का मार्केट क्रैश हो और हमारे पर इम्पैक्ट ना आए. तो इट इज नॉट अबाउट इंडिया, आई एम मोर कॉशियस अबाउट यूएस स्टॉक मार्केट, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि बॉन्ड में रुपये लगाने पे, बॉन्ड में 100 रुपये लगाने पे 3 रुपया मिलता है. सॉरी, बॉन्ड में लगाने में 5 रुपये लग रहा है और स्टॉक में लगाने में 3 रुपया मिल रहा है. ऐसा कभी मैंने तो सुना नहीं अपने करियर के अंदर. तो ये डाइकॉटमी है. एंड आई थिंक ये पूरा बड़ा अच्छा मैनेज है मार्केट अभी. तो आई थिंक वो अच्छी जल्दी ही वो अपने फेयर वैल्यूएशन पे आ जाएगा. True, sir. So we know that, yes, obviously there are certain, like as you rightly said about the Trump, we all are so worried about, we all keep following, like I think many of us has become his followers because of the market news only, that what he will tweet and basically it will become the trend for the next day. But in this situation, till the time, as Amit sir was saying that okay, ये 6 month की visibility हम नहीं देख सकते, but long term perspective में going forward there will be market where we can invest, and in between have a safe side, safe investment on the other sides. But in between that, what you will suggest, sir, my question will be to guest speakers, sir, is that what happens is that retail investors generally trend into losses only. जैसा कि आप देखें सारे हाथ आपको लॉस वाले दिखे, तो ये होता है, it's a factual. In fact, SEBI has released the study where it is admitting that 93% of the retail investors are ending up with the losses only. So where we go wrong, what basically we should do, and like what you will suggest if I ask you as a like a common investor that said, what for me, what can be the do's and what can be the do nots in the market? What will be your views on that? देखिए, पहले तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन थी 10 साल, शॉर्ट टर्म 3 साल, और मतलब मीडियम टर्म 3 साल और शॉर्ट टर्म 1 साल. आज लॉन्ग टर्म बन गया BTST और सबको बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, है ना. तो क्या है ना, गलती पता क्या होती है, जैसे मैं कई बार शो करता हूँ,
आपने कोई स्टॉक लिया, वो 20% ऊपर है, तो उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो लिया था, ट्रेडिंग के लिए था? बोले सर लिया तो इन्वेस्टमेंट के लिए था, लेकिन 20% भाग गया तो बेच दिया मैंने। बोले तो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिया, ट्रेडिंग के लिए लिया? बोले लिया तो इन्वेस्टमेंट के लिए था, लेकिन 20% भाग गया तो बेच दिया मैंने। अच्छा ठीक है। बोले दूसरा स्टॉक? बोले सर उसमें 20% डाउन हो। बोले वो बोले वो ट्रेडिंग के लिए लिया था। बोले लेकिन अब इन्वेस्टर बन गया हूँ। True, और true, very तो true. ये सबसे बड़ी गलती है रिटेल Very इन्वेस्टर true. की। जो उसमें लॉस होता है उसको पकड़ के बैठे रहो, और जिसमें हल्का सा प्रॉफिट हो गया उसको बेच के निकल जाओ। उल्टा करेंगे अगर इसका, तो पूरी की पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। उल्टा कर नहीं पाते हैं लोग। एक स्टॉक 100 का 120 हो गया, एक स्टॉक 100 का 80 हो गया, 100 का 120 वाला बेच देंगे, 100 का 80 वाला लेके बैठे रहेंगे। फैक्ट है ये, गलत नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट ने आपको बता दिया मार्केट क्या चाह रही है। मार्केट ने आपको बता दिया कि जो 100 वाला 120 हो गया है, अगर वो जो 100 वाला 80 हुआ है, आप उसको बेच के भी वो 120 वाले में और थोड़ा सा भले ही कम क्वांटिटी आएगी, 2 साल बाद आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, जो रिटेल जो सेबी का डेटा है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर है डेली ऑप्शन और ये हीरो ज़ीरो। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क इस मार्केट का अगर किसी ने किया तो ये हीरो ज़ीरो ट्रेड है ना। इसमें क्या होता है, हर कोई सोचता है हर मंगलवार को आज मेरा दिन है 5 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए बनाने का। वो 5-5 रुपए वो एक दिन बना भी लेते हैं वो, लेकिन उसमें ना 15 या 16 बार वो पहले 5 रुपए जीरो हो जाता है। उसके बाद 17वीं बार अगर आपका वो हो भी गया तो क्या ही हो गया उसमें। ठीक है। तो ये एक और बड़ा फैक्टर है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं कि आप अपने लॉसेस को कट नहीं कर पाते हैं जल्दी। आपने ट्रेड ली, चार्ट पे एंटर किया, आपने एक स्टॉप लॉस देखा, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, वो वहाँ पे आया, आपने 5 मिनट का चार्ट बढ़ा के 1 घंटा कर दिया। 1 घंटे के चार्ट में अरे अभी तो थोड़ा स्ट्रांग है 1 घंटे के चार्ट में। अगर आपने 5 मिनट के एंट्री के हिसाब से एंट्री की तो आपको वही स्टॉप लॉस होना चाहिए था, है ना। एक और चीज़ जो गलती करते हैं लोग, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं स्टॉक की, तो वो एक और दिक्कत होती है। और एक आखिरी चीज़, एक राकेश झुनझुनवाला ने एक चीज़ कही थी, ये राकेश झुनझुनवाला ने कहा पता है ट्रैक रिकॉर्ड कितना था? 40%। ऐसा कोई मतलब जीनियस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था उनका, उनके ही बहुत गलत गलत स्टॉक गए हैं, लेकिन उनका एक मानना यह था कि जहां मैं गलत हूं वहां मेरा लॉस बहुत कम है, लेकिन जहां पे मैं सही हूं वहां पे फिर मेरा प्रॉफिट बहुत हाई होना बहुत है चाहिए। मतलब इफ यू आर राइट यू शुड मेक, कोई भी आप ट्रेड ले रहे हैं ना उसके 4 आउटकम है, लार्ज प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, लार्ज लॉस, स्मॉल लॉस। आपको उस लार्ज लॉस को इवेपोरेट करना है, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, ये कॉम्बिनेशन होगा तो ठीक होगा। एक और चीज, ये जो डेली ऑप्शंस थैंकफुली अब तो बंद हो गए, अब तो मतलब वीकली एक्सपायरी एक ही रह गई limitations. है। देखिए ये जो जेन स्ट्रीट और ये जो बाकी सब लोग हैं जिनके पास इतनी डीप पॉकेट्स हैं और एल्गोज हैं और जिस तरीके से ये ट्रेड कर रहे हैं, इनको आप नहीं बीट कर पाएंगे, इनकी एज को आप नहीं बीट कर पाएंगे। तो आपको अपनी एज बनानी पड़ेगी अलग से। वो एज कहाँ से आएगी वो आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जब ये डेटा आया था सेबी का कि 90% ट्रेडर्स लूज मनी, तो मुझे सेबी की तरफ से फ़ोन आया था, सेबी ने मुझे बुलाया, बोले कि आपसे बात करनी है। तो सेबी के डायरेक्टर थे, मैं गया मिलने। मैं कहा जी सर बताइए। बोले देखिए ये हमारे पास डेटा है, हम चाहते हैं कि आप अपने शो में दिखाएं इस डेटा को कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं। मैं कहा सर हमारा चैनल ज़्यादातर ट्रेडर ऑडियंस है, मतलब आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि आप ना दिन में 2 बार दिखाएं कि 90% ट्रेडर्स लूज मनी। मैं कहा सर मैं दिन में 2 बार नहीं दिखाऊंगा, मैं दिन में 10 बार दिखाऊंगा कि 90% ट्रेडर्स लूज मनी। ठीक, मैं कहा ठीक, मैं कहा 10 बार दिखाऊंगा। अब वो गए, उसके बाद मैं 6 महीने बाद गया उनसे मिलने। मैं कहा कि सर क्या रिजल्ट निकला? बोले वो 90% का नंबर है 93% हो गया है। तो अभी क्या है ना, सिगरेट पे आप जितना मर्जी लिख दो, सिगरेट पीने से ये होता है, उसके ऊपर गंदी से गंदी वार्निंग लगा दो, जिसने पीनी है उसने पीनी है। अब हम पिक्चर देखने जाते हैं, मैं शुरू के 5 मिनट अपना चश्मा निकाल के ऐसे बैठता हूँ क्योंकि वो गंदे से टोबैको के ऐड आ रहे होते हैं जो देख के एकदम से दिल दुखी हो जाता है। जिसने पीनी है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो जिसने लॉस करना है उसने लॉस करना ही है, आपके बोलने से कुछ होगा नहीं उसमें। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा अपनी साइकी समझिए कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, 90% इन इट सेल्फ इज, अब जो 10% बना रहे हैं वो बना रहे हैं ना पैसा भाई,
इन्वेस्टिंग में तो सब पैसा बना सकते हैं, ट्रेडिंग में तो एक पूल है। एक दिन की मार्केट में अगर 1000 रुपए थे, उसमें अगर 90% ने लूज किया तो बाकी 10% ने वो 1000 रुपए बनाया है। तो उस 10% में कैसे आ सकते हैं, ये भी थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि कंसिस्टेंटली आप ट्रेडिंग में लॉस बना रहे हैं, तो जिसे कहते हैं ना, इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। तो वो मत करिए। मान लीजिए कि आपने ये ट्रेडिंग के लिए कुछ और करिए फिर इन दैट केस। True, very true, sir. So if I can summarize for the audience, कि it needs 3 P's like patience, perseverance, and proper planning कि for a small investors to be in the market. So continuing with your thing only, and just one more question, one or two questions we will take, and then we'll go to the audience. कि आपने कहा एल्गो ट्रेडिंग वगैरह है आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ, अभी क्या हो रहा है ना, इट्स स्पेशली फॉर द यंग इन्वेस्टर्स, बिकॉज हमारे भी एक ट्रेंड क्या होता है ना मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग का, वो बेनिफिट्स और उसको देखते हुए देन पीपल डू थिंक अबाउट दैट कि दैट is there anything, something special benefits, and we can make a good position by using algo, especially in this technological environment. So what is your view, what you would suggest to the young investors, especially in view of this algo trading? नहीं, देखिए एल्गो में लोग पैसा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना रहे हैं, बट वो आपको फिर देर आर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, या तो आप सीखिए, एआई सीखिए, एल्गो ट्रेडिंग सीखिए और करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपना पैसा किसी मनी मैनेजर को दीजिए, उससे पैसा बनाइए और अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा म्यूटेड रखिए, तो ठीक है। मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी, और अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम हो तो एक Yes, छोटी yes, सी please, स्टोरी सुनाना please. चाहता हूँ। मैं एक बार मैं ऑफिस में, मुझे एक फ़ोन आया, मेरे जो ऑफिस के जो सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो सिक्योरिटी के चीफ हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो उन्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो उन्हें आपकी थोड़ी सी एडवाइस चाहिए। मेरे को लगा अच्छा कॉज है, तो मैं चला गया। मैं गया, मैंने कहा हाँ जी, तो कितना पैसा बचा रखा है आपने? तो उन्होंने बोला कुछ 25-30 लाख है। बोले किस लिए चाहिए? बोले मेरी 2 बेटियां हैं, अभी स्कूल में हैं, मुझे उनके कॉलेज के एजुकेशन के लिए, अभी तो सरकारी स्कूल में जा रही हैं लेकिन कॉलेज में थोड़ा चाहता हूँ कि अच्छे कॉलेज में जाएँ, तो उनके लिए मुझे पैसा लगाना है। मैं कहा ठीक है। तो मैं कहा कि तो फिर आप क्या चाहते हैं? बोले नहीं सर, आप बता दीजिए कहाँ लगाएं पैसा। मैं कहा क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? उन्होंने कहा कि सर 15% रिटर्न मिल जाए काफ़ी है मुझे। मैं कहा कि यार देखिए, थोड़ा सा 12% तक तो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 12% के रिटर्न्स तो क्या अगर होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। मैंने कहा चलो ठीक है, 15% में आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, हम थोड़ा सोच सकते हैं कि कहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, कहाँ ये 15% साल का रिटर्न लेकिन आ जाएगा। मैं सोच ही रहा था, तो इतने में उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा सर थोड़ा आप गलत समझ गए। मैं कहा क्या गलत समझ गया? बोले सर 15% पर ईयर नहीं, 15% पर मंथ। तो तो मैंने कहा सर ऐसा है, मेरी तो काबिलियत के बाहर है, ठीक है। जब आपको मिल जाए कोई ऐसा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी लगा दूंगा पैसा। तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन को कम रखिए। Very true. Very, very well covered on this with this example. Very good. Very nice, sir. And like one questions from you, like Amit sir, कि that बेसिकली होता है कि नहीं, मार्केट के बारे में भी हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, यहाँ भी ये लोग हैं, आपसे कुछ सेक्टर सुन भी लेंगे, आईटी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर है, सब सुन लेंगे, पर इस जाने के बाद भी एक जो फीलिंग है ना, वो बोलते हैं मोटिवेशनल सेशन, जब हम सुनते हैं तो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, बट एट द एंड जब निकलते हैं तो आपस में बात करते हैं कि कुछ मोटिवेट हुआ कि वैसा ही है, बोलो वैसा ही है। तो इट लाइक्स इन मार्केट सिनेरियो ऑल्सो वी ऑल नो कि कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो, मतलब कैसे बनाए पोर्टफोलियो, एक होता है कि हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें सो दैट यस आवर बैलेंसेज आर देयर whether the market turbulences are there or not. And second important thing that becomes very important कि कई बार क्या होता है ना, हमारे माइंड में ये भी चलते रहता है कि हम किसी सेक्टर में चले जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर एक सेफ लगा चले गए, बट बैंकिंग में भी वी हैव सीन देयर आर साइड्स, वन बैंक इज गोइंग यू कैन से more than 3 or 4 times growth and one remains the same on the same platform. So in this kind of a scenario, what will be your advice that how you built up a good construction portfolio, and is there any requirement to see, or what are the factors one should have in mind while looking into the sector as also, like allocations, like deep research analysis of that particular field, etc. So what are your views on this, sir? देखिए, पोर्टफोलियो के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो नंबर 1, आई थिंक आई कैन से 3 थिंग्स। नंबर 1, राइट सेक्टर। अगर आपका सेक्टर सही नहीं है तो पैसे बनाना लगभग नामुमकिन है, राइट, नंबर 1। नंबर 2, उस सेक्टर के अंदर भी राइट स्टॉक या उसका कॉम्बिनेशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सन 2004 के अंदर बैंकिंग सेक्टर 2004 से लेके अब तक मल्टी बैगर रिटर्न दिया, आईटी सेक्टर ने भी मल्टी बैगर रिटर्न दिया पिछले 20-25 सालों के अंदर। पर आईडीबीआई बैंक का भाव सन 2004 में था करीबन 40 रुपया,
IDBI बैंक, वो आज भी 80 रुपये के आसपास है। और ICICI बैंक का जिसका भाव 20 रुपया था, वो आज 1300 के आसपास है। तो आपने सेक्टर भी अगर सही चूज किया, लेकिन अगर उसके अंदर स्टॉक सही नहीं है तो वो भी गलत है, मतलब दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। सो 3 स्टेप प्रोसेस है। नंबर 1 राइट सेक्टर, उसके बाद राइट स्टॉक, और तीसरा राइट एलोकेशन। हम में से जितने लोग भी हैं, हम हो सकता है स्टॉक में पैसे कमा लें, बट चैलेंज है पूरे पोर्टफोलियो पे रिटर्न कमाना। मान लीजिए मेरा 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, मैं हो सकता है मैंने एक शेयर लिया जिसमें मैंने 2 करोड़ रुपए डाल दिए, वो 2 करोड़ के 4 करोड़ हो गए, पर 100 करोड़ रुपए कितना कमाया, दैट क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड टू आवरसेल्व्स, राइट। सो जो एलोकेशन है वो एक की होता है अच्छे पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एंड हमारे हिसाब से 40 to 50% कहीं ना कहीं, अगर आपको स्टेबल पोर्टफोलियो रिटर्न चाहिए, स्टेबल पोर्टफोलियो रिटर्न जहां आप कंपेयर करते हो बॉन्ड से या फिक्स डिपॉजिट से, और अगर आपको पोर्टफोलियो रिटर्न चाहिए तो 40 to 50% आपका अंडर वैल्यूड लार्ज कैप स्टॉक में होना चाहिए। अंडर वैल्यूड लार्ज कैप, बाकी यू आर फ्री टू प्ले विद स्मॉल कैप एंड मिड कैप डिपेंडिंग ऑन योर इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट। अब जब हम बोलते हैं लार्ज कैप अंडर वैल्यूड, तो ऐसे जो भी स्टॉक हैं जो मिस प्राइस्ड हैं और निफ्टी का पार्ट है, मिस प्राइस्ड हैं और निफ्टी का पार्ट है, उनके अंदर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा कमाना का चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से 2 साल पहले HDFC बैंक का भाव था 1400 रुपया, अंडर वैल्यूड था, निफ्टी का 12% वेट था, राइट। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो देयर वाज वेरी हाई चांसेस कि HDFC बैंक के साथ ही ऊपर जाएगा। ऐसा हुआ भी, 1400 से 2000 गया, पर वहाँ प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए था। और उस वक्त जब आपने प्रॉफिट बुक किया होगा HDFC में 2000 पे, तो रिलायंस 1120 पे मिल रहा था। निफ्टी में भी रोटेशन होता है, निफ्टी ऊपर गया मतलब ये नहीं कि निफ्टी के 50 के 50 स्टॉक ऊपर गए, निफ्टी में भी बहुत डाइकॉटमी होती है, सारे स्टॉक एक बार में ऊपर नहीं जाते। अगर आप निफ्टी 50 में या निफ्टी 100 में जो क्वालिटी स्टॉक है और आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, आप एक फैमिली ऑफिस है, आप पे 100 200 500 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो अगर आप ऐसे मिसप्राइस स्टॉक में भी आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं अपने 5-6 स्टॉक का, और 10-12 स्टॉक रखते हैं मिड कैप और माइक्रो कैप के, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा और रोबस्ट रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो बन सकता है। और हम लोग ऐसे ही करते हैं फॉर फैमिली ऑफिसेस। दैट्स हाउ प्रॉब्ली वी क्रिएट अ डिफरेंशिएटर फॉर आवरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड। So very rightly you said that allocation is the aggregation for money, and then it's require the engineering for the complete restructured portfolio. So very nicely, and thank you for sharing this. I'm sure that before I could have some few more questions, the audience will also be eager to have few more questions, because they will be, they all are waiting eagerly since morning to have some personal questions. So now we open the floor to the public. Yeah, the first question is coming from that side. Yeah. Amit ji, how you feel about gold in such a high volatility geopolitical tension? सर देखिए, गोल्ड पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक है ना, आप लिखिएगा, एक टॉपिक है गोल्ड इज नेक्स्ट बजूका। गोल्ड इज नेक्स्ट बजूका। अमित जैन, हमने एंट्री करवाया था गोल्ड का 7 जुलाई 2020 के अंदर, तब गोल्ड का भाव था 32,000 रुपया। और ये आर्टिकल पूरी दुनिया में, गूगल तो पूरी दुनिया का सर्च निकालता है, ये आर्टिकल अमित जैन के नाम पे ही है। अच्छा। तब गोल्ड मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर अब इस भाव पे जब गोल्ड 32,000 का गोल्ड 1 लाख 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास आ गया, हमें लगता है कि अभी एक टाइम करेक्शन रहेगा इसके अंदर। आपको वो जो 5 गुना रिटर्न मिला है 500% का गोल्ड के अंदर, यहां से तो नहीं मिलने वाला है, ये कंफर्म है। बट रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ योर फंड, सेफ्टी सर बिल्कुल है गोल्ड के अंदर। गोल्ड का एक जो रेंज रहेगा ट्रेडिंग का, और मान के चलिए 32,000 तो मेरी जिंदगी में तो आने वाला है नहीं, ठीक है। और जो एक रेंज बनता है गोल्ड का आयना टर्म में, बिकॉज रुपी भी डिप्रिशिएट होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल रीजन, तो मैं अगर आयना में बात करूं तो गोल्ड का एक रेंज हमें लगता है 1.25 से लेके 1.80 1.90 के बीच में एक होवर करता रहेगा, वो एक सेफ्टी नेट है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अनुज भाई कैन ऐड। अनुज भाई, मैं ऐड करूँगा। बचपन में पापा अगर कहते थे कि ये चीज़ नहीं लेनी है फ्रिज में से, तो हम रात को वही लेते थे उठ के, है ना। तो अभी अगर मोदी जी ने कहा कि गोल्ड नहीं लेना है, तो लोग ले रहे हैं, तो सब गोल्ड ही के पीछे भागे। Yes, very true. और मेरा मानना तो ये है कि गोल्ड यहाँ से, देखिए गोल्ड हमें नहीं लेना है कि वो अपील क्यों की गई है, क्योंकि
हम हमारे यहाँ पे कोई गोल्ड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हाँ। सारा का सारा गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है हम इतना खर्च कर सकें। लेकिन रियलिटी ये है कि जो दुनिया है इस समय, लोग गोल्ड इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको कोई गहने बनवाने हैं, हाँ, लोग गोल्ड इसलिए ले रहे हैं कि कल को करेंसीज किस तरफ जाएंगी, कल को आपके जो अकाउंट में पैसे हैं उसकी कितनी वैल्यू होगी, कितनी नहीं होगी, कल को कोई वर्ल्ड वॉर हो गई, कुछ हो गया, तो आपके पास एक हेज होना चाहिए। या तो मेरा मानना ये है कि गोल्ड यहाँ से भी मैसिव आउट परफॉर्मेंस करेगा और अगले कुछ सालों में आई वोंट बी सरप्राइज टू सी गोल्ड एट 3.5 से 4 लाख ऑल्सो। डेफिनेटली दैट इज माई व्यू, आई कैन बी रॉन्ग एंड आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। अब ये कॉन्ट्रास्ट भी हुआ, अब देख लो सर, लेना नहीं लेना है। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये इसलिए मानना दो मुंबई कर की भावना हमने देखी मेरा है। एक अमित भाई के, एक अनिल मेरा ये भाई मानना है कि यहाँ से गोल्ड में बड़ी रैली आएगी। की। ठीक। Thank you. So now question is on the silver. सेम सिल्वर ऑल्सो। सर अभी इधर तो बोलते पावर नहीं है और इधर जो रिन्यूएबल एनर्जी का बोलते हालत बहुत खस्ता है, सप्लाई जीरो भाव में बिक रहा है, ये क्या चक्कर है? सर ये चक्कर ऐसा है, एक ना हास्य रस के कवि थे सुरेंद्र शर्मा, उन हास्य रस के कवि हैं सुरेंद्र शर्मा, हरियाणा के, मैं गुड़गांव से हूँ, हरियाणा से ही हैं। तो उन्होंने वो 4 लाइना के लिए जाने जाते थे, तो उन्होंने ना कहा कि एक बार ना एक डाकुओं के सरदार की तरफ से उनको इनविटेशन आया कि आपको हमारे यहाँ पर एक कवि सम्मेलन है उसमें आना ही है। डाकुओं के सरदार ने बोला कि आपको आना ही है। बोले कि आपकी फीस कितनी होती है? बोले मेरी फीस तो 2 लाख होती है। बोले हम 10 लाख देंगे लेकिन आपको आना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, तो वो चले गए, बकायदा 10 लाख रुपए भी दिए उन्होंने उनको। और जब वो वापस आ रहे थे तो अपने डाकुओं से लुटवा लिए वो। तो भाई उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? बोले देखिए हमने आपको प्रॉमिस किया था हम 2 लाख के 10 लाख देंगे, वो प्रॉमिस हमने पूरा किया, वो हमारा फर्ज था, पर हम डाकू हैं, लूटना हमारा काम है। तो ये ऐसा ही है मार्केट में यही चीजें होती है, ये सब डायकोटमी है। तो ये अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि अब जैसे बहुत लोगों का मानना है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी है, अब रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी में कंपनियां 70% के मार्जिन बना रही हैं। क्यों बना रही हैं? क्योंकि सूर्य भगवान चार्ज थोड़ी ना करते हैं, सूर्य भगवान ने तो कुछ चार्ज करना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे और कंपनियां इस फील्ड में आती जाएंगी ये सारे मार्जिन धीरे धीरे क्रैश होते जाएंगे। और इसी के लिए मैं एक बात कह रहा हूं, भले ही बहुत लोगों को चीज ये फील्ड बहुत एक्साइटिंग लग रही हो, ये 3-4 साल इसमें कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स बड़ा पैसा बनाएंगे, लेकिन इसके बाद ज्यादा पैसा वो कंपनियां बनाएंगी जो इस एनर्जी को यूज करेंगी, क्योंकि आगे जाकर ये सब प्राइसेस जो है एनर्जी के प्राइसेस ये क्रैश करेंगे आगे जाकर। तो आपको एक फेज है, लेकिन अगले 3-4 साल में ये कंपनियां बड़ा पैसा बनाएंगी। और ऑनेस्टली अभी तो हमारी जो एक थॉट प्रोसेस 3-4 साल से ज्यादा की तो हो नहीं सकती। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि रिन्यूएबल में पैसा बनेगा, लेकिन इसमें टाइम पे एग्जिट लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उसमें स्टॉक चुनना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कुछ ही कंपनियां होंगी जो इन मार्जिन को सस्टेन कर पाएंगी। Very true, sir. So next question is, yeah. सर आई एम सी प्रियंक सिंह। 2-3 क्वेश्चन है सर। एक तो जैसे अमित भैया बोल रहे थे कि डाउ में प्रॉब्ली करेक्शन आएगा। सर अमित भैया डाउ वाज 40,000, निफ्टी 26,200 था अप्रोक्सीमेटली, 40-42 हज़ार था, 26,200 था। डाउ 50,000 आ गया है, निफ्टी 23,000 के आसपास घूम रहा है। तो अगर डाउ में करेक्शन आया तो निफ्टी तो 18,000 आता दिखेगा। भाई मुश्किल है कहना, आई विल बी ऑनेस्ट, बिल्कुल सही कह रहा है। तभी मैंने कहा कि शायद वेट करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा वो $70 ट्रिलियन का मार्केट है, उसने अगर थोड़ा बहुत भी छीका तो हमें दिक्कत आएगी। एक चीज़ कंफर्टिंग है इसके अंदर, एक डिस्क्लेमर है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जो DII है उनका होल्डिंग इंडियन मार्केट में FII से बड़ा हो चुका है। आज DII लगभग करीबन 18.5% है और DII लगभग 17.5% है। एक बस वो कंफर्ट है। और ऐसा भी पहली बार हुआ है, मैं एक फिगर देता हूँ आपको। 2008 के क्रैश के अंदर फॉरेनर्स ने, जब लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, ठीक है, तो केवल 80,000 करोड़ का माल बेचा था, ओनली 80,000 करोड़, और निफ्टी 50% टूट गया था। 80,000 करोड़ बेचा था और निफ्टी 50% टूट गया था। अभी 10 लाख करोड़ का माल बेच चुके, पर निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, मुश्किल है अब इसका आंसर देना सर्टेनली, हाँ, बट लेकिन वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इसको समझदारी से ही प्ले आउट करना पड़ेगा। अगर रिस्क फ्री, कम रिस्क के साथ पैसा कमाना है तो उसका कोई स्टेट आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 80,000 करोड़ का माल बेचा और 50 का निफ्टी टूट गया।
अभी 10 लाख करोड़ का माल बेचा और निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा है, तो स्टेबल है, डोमेस्टिक फ्लो बहुत स्ट्रांग है, 35,000 करोड़ का आपका SIP बुक है। एक मार्केट कैप जिस स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन हो और लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए का SIP बुक हो, तो टूटना मुश्किल है। और इंडिया के मार्केट में एक फायदा और है कि आज भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो करीबन 50 से 52% प्रमोटर के पास है, उसके बाद DIIs है और FIIs हैं। और प्रमोटर की एक खासियत है कि वो सस्ते में माल नहीं बेचेगा, तो प्रमोटर की सप्लाई तो आउट हो गई। ये जितने QIP प्रेफ हमने देखे 2024 में, ये उसी का रिजल्ट है कि आज मार्केट यहाँ पे है, लिक्विडिटी अभी क्रंच आ गया है। अगर इतने प्रेफ और QIP नहीं होते तो मार्केट में इतना क्रंच नहीं आता, तो प्रमोटर तो नीचे माल बेचेगा नहीं। DIIB पे भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि माल बेचेगा नहीं, बिकॉज पे तो इन्फ्लो आ रहा है 3.5 लाख करोड़ का हर साल का। FII अकेला एक माल बेच रहा है, कितना और कितनी वेलोसिटी से बेचेगा, बस क्वेश्चन वही है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक जोक है आजकल कि पहले क्या आएगा, उसमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। सलमान खान की शादी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, या फिर नैस्डैक में करेक्शन आ जाए। तीनों में से क्या होगा पहले? तो बोले क्योंकि सब तीनों के वेट कर रहे हैं लोग, तीनों में से कुछ नहीं हो रहा है। और नैस्डैक की करेक्शन की मैं बात बताऊं, कितने लोग 6 महीने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नैस्डैक में करेक्शन आएगी, वो आगे नहीं दे रही है। अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसमें करेक्शन पता है मेरे को ऐसा लग रहा है कब आएगी? उसमें करेक्शन तब आएगी जब वहाँ की अर्निंग्स ग्रोथ रुक जाएगी। अनुज भाई, जब तीनों IPO आ जाएंगे इसका हाँ। तो अपना बात बस कर बस सकते हैं। बस अभी ये तीनों IPO आप आने दो, ये $3 ट्रिलियन के जो IPO आ रहे हैं एलन मस्क के और 2 लोगों के, हाँ, जहां पब्लिक उन्होंने 25 का दे दिया, SpaceX वगैरह हाँ, के, हाँ, उसके बाद सब एग्जिट है। बिल्कुल। बहुत, लेकिन बहुत महंगी हो गई है कंपनियां। मतलब एक कंपनी $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप, मतलब एक कंपनी पूरे देश की इकोनॉमी से बड़ी हो गई है। एंड पूरा राउंड ट्रिपिंग है। इफ यू सी एनवीडियाज बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग, दे आर फंडिंग देयर ओन ग्रोथ। इट्स एक्चुअली, अगर हमारा सेबी होता तो राउंड ट्रिपिंग में वैसे ही अटका देता आपको, बट वहां वो चल रहा है, अभी चल रहा है, जब तक चल रहा है। पार्टी चल रही है वहाँ। One more question, Amit Bhai. Sorry. एक लेते हैं, उसके बाद अगर टाइम हाँ, if time permits, we'll come back. मैडम को देते हैं Yeah. सर, सुबह मैं पेपर में पढ़ रहा था हाँ, कि कल FFI ने 21,000 करोड़ का माल बेचा, हाँ, जबकि इंडियन इन्वेस्टर्स ने 16,000 करोड़ का माल खरीदा। हाँ, तो ये गैप के चलते कल निफ्टी 400 पॉइंट गिरी। हाँ। मैं ये पूछना, मेरा क्वेश्चन ये है कि FFI की टोटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितनी है? 15 लाख करोड़ करीब। आई लगभग 18 लाख करोड़ के आसपास का FII का इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल। सर, सिर्फ 18 लाख करोड़ रुपया हाँ। यदि इंडियन इन्वेस्टर खरीद ले तो मार्केट गिरना बंद हो जाएगा। सर वो खरीद रहा है, तभी हमने कहा कि 10 लाख नहीं, करोड़ उसी का स्पीड FII ने में- माल बेचा। उसी स्पीड में खरीदने की जरूरत है ना सर। उतना सर आपको SIP आज बढ़ाना पड़ेगा सर। 21,000 करोड़ उन्होंने बेचा, यदि हम 22,000 करोड़ के बायर यदि खड़े हो जाएंगे बाजार में, बिल्कुल। तो मार्केट गिरेगी ही नहीं। नहीं, कल 100% का जो 21,000 करोड़ का नंबर था ना, वो MSCI का रीएडजस्टमेंट था। MSCI की रीबैलेंसिंग हुई थी कल, तो उसकी वजह से आया था। लेकिन अदरवाइज DIS नॉर्मली उतना खरीद रहे हैं जितना FIs बेच रहे हैं, तो वो तो हो ही रहा है। चलिए, एट टाइम्स आई वंडर कि ये मैच कैसे हो जाता है कि वो तो भैया वो market making FII mechanism है। जितना बेचता है उतना ही DI खरीद लेता है। इवन वी वंडर एट द बैक ऑफ इट। चलिए नेक्स्ट सवाल। Yeah. गैप कॉर्पोरेट ट्रेजरीज वगैरह वगैरह सब होते हैं उसके लिए थर्ड फेज। एक Sir- मैडम से ले लेते हैं लेडीज क्वेश्चन का। हाँ हाँ Thank you so much. Firstly, I'd like to congratulate BBD Bar Professional Association for bringing together such an amazing panel. I think we should have a huge round of applause for them. थैंक यू थैंक यू। Sir, my question is to the guest speaker here. So you also mentioned that SEBI had asked you to put that disclaimer in your TV channel, and we've also seen the young investors coming towards seeing the financial influencers. Since we have the opportunity of having you from the media, can you show some light on what is the nexus between media, SEBI, and the capital markets, and what do you see coming forward with the rise Nexus? of the nexus, the connection between media and the stock market, because it is actually the young Madam, I can investors- tell you about myself. I don't claim to be, an authority on everything. I can put a hand on my heart and say that there's absolutely no nexus between me and any kind of market player. I mean, that I can tell you safely. Baki, and I would say that would be the case mostly. ठीक है ना? Most of us, I can tell you about myself. Most of us are in this field because we are passionate about it.
and most of us are in this field because we love it. When we go and people treat us like stars and larger than life, we enjoy it, honestly speaking. That's the only reason. बाकी Nexus, देखिए क्या होता है कि like in every field there are bad apples. वो आपको हर फील्ड में मिलेंगे. There will be bad doctors, right? But that doesn't mean that doctors is a bad profession, right? I mean, I have a reason to believe that my father died because he didn't get proper treatment, right? But that doesn't mean that I start disrespecting all doctors. So that is where you have to draw the line. I mean, there will be corrupt IAS officers, but that doesn't mean that the whole IAS officer body is corrupt. In fact, this country is being run by them. So same with the politicians. There will be honest politicians. So I don't think you can brush everything with same color. So I mean, I don't think there's any nexus, anything. I hope that answers your question. Yeah. Yes. I try to answer your query. What I understand is, आपको ये लगा कि सेबी ने बोला 92% लोग लूज करते हैं मार्केट में ट्रेडर्स. वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 92% लोग ऑप्शंस को खरीदते हैं, और जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आप एक या दो बार तो पैसा बना सकते हो, पर आप कंटिन्यूसली आप पैसा नहीं बना सकते हो. जेम्स स्ट्रीट क्या करता था? जिसने 42,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, वो ऑप्शन खरीदता नहीं था, वो ऑप्शंस बेचता था, चाहे वो पुट बेचे या कॉल बेचे. तो एक्चुअली सेबी को वही समझता है कि 92% लोगों ने लूज किया, ये 8% लोग कमा के चले गए, विच आर द लार्जर प्लेयर ऑन दैट लाइन. तो ये नेक्सस नहीं, ये एक वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी होती है फॉर द लार्जर प्लेयर. अनुज भाई ने कहा कि जेम्स स्ट्रीट से कंपेयर करना अपने आप को बेकार है, हमारे पास वो लिक्विडिटी पावर नहीं है. ऑप्शन बेचने के लिए उतना ही मार्जिन लगता है जितना फ्यूचर खड़ा करने पे लगता है. उतनी लिक्विडिटी हम रिटेल इन्वेस्टर में होती नहीं है. सो वी जनरली बाय. और जब भी आप किसी भी बिजनेस चैनल को देखोगे, आप चाहे कोई भी बिजनेस चैनल हो, यूट्यूब चैनल, वो कहेगा ऑप्शन बाय कर लो. तो उनको पता है मेरा क्लाइंट है रिटेल, राइट? तो ये नेक्सस नहीं होता, ये वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजीज होती है फॉर द लार्जर प्लेयर. तो उसमें कहीं नेक्सस किसी एंगल से नहीं होता. इट्स ओनली दे सेल ऑप्शंस. और एक चीज बताऊं, ऑप्शंस में भी ना, अगर आप सिर्फ एक मॉडिफिकेशन कर लें, इंस्टेड ऑफ बाइंग that week's option, if you just push it by 1 week or 2 weeks, you will notice that you are able to stay in a trade for a slightly longer time or for a more logical time. चलें एक दो सवाल Yeah, very true. Yeah, next question from this side. So in the last 50 years, it is the first time, if we consider state like West Bengal having this 6th ranking in terms of GDP, 4th ranking in terms of population. So now it is aligned with the center. So what are your thoughts in terms of the development of West Bengal as a state and the companies herein going forward, and hence the investment in those companies? देखिए, ये मैं कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है किसी से भी. मैं सबको इक्वली हिट करता हूँ. तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इट्स गुड फॉर द स्टेट कि सेंटर एंड स्टेट आर अलाइंड. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए. और कोलकाता मतलब एक समय पे भारत की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है ना. एक समय पे भारत की फिनेंशियल कैपिटल भी कोलकाता हुआ करती थी, पॉलिटिकल कैपिटल भी कोलकाता हुआ करती थी. तो आई फील दैट कोलकाता, मेरा कोलकाता के साथ एक काफ़ी क्लोज नाता भी रहा है. मैं आपको स्टोरी बताता हूँ एक कोलकाता की छोटी सी. कोविड का टाइम चल रहा था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था. जिस दिन डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसी दिन मेरा कोलकाता में इवेंट था. उसी दिन, ठीक है. तो अब क्या है कि जेब में, अब बाई चांस की बात है कि 500,000 के नोट ही थे, कोई छोटे नोट तो थे नहीं. अब वो लेके मैं आ गया कोलकाता, मैं लैंड कर गया इवेंट के लिए. पता चला मोदी सर ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया. अब मेरे पास, मैं कोलकाता का स्ट्रीट फूड खाने के लिए, पुचका खाना है, वो अंडा रोल खाना है, मैं घूम रहा हूँ सड़कों पे, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए. लेकिन एक ग्रुप ऑफ लोगों ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया और उन्होंने उसके बाद कहा कि सर आप आए हैं यहाँ पे, आप हमको हमारे आपका जितने भी पुराने नोट दे दीजिए, हम आपको आपका छोटे नोट में करके कर देंगे, आपका सारा काम हो जाएगा. तो वो थोड़ा सा मेरा, तो मैं तो दिल से चाहता हूँ कि कोलकाता गेट्स इट्स ग्लोरी बैक. And I'm hoping कि now that center and state are aligned together, that will happen, है ना? Yeah, very true. और We will. अमित भाई तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ मिल जाए यहाँ पे अच्छा सा.
तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है यहाँ पर, है ना? Very true. We all are very optimistic, and we all, especially from Bengal, एक मिनट we are seeing positive changes only. सर So we'll have, हाँ. सर थोड़ा सा क्रिप्टो पे आपके कमेंट्स देखिए, एज एन मेरा मानना सेविंग ये एंड है, इन्वेस्टमेंट। पर्सनली मेरा मानना ये है, इस रूम में बैठा हर इंसान इवेंचुअली दे विल बाय क्रिप्टो, इवेंचुअली यू विल बाय क्रिप्टो, एंड क्रिप्टो से मेरा मतलब है बिटकॉइन। आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी अदर करेंसी। मेरा मानना ये है कि बिटकॉइन आगे जाते हुए $1 मिलियन का भी हो जाएगा, क्योंकि ये आगे जाकर, देखिए सरकारें इसको कितना कोशिश कर रहे हैं दबाने की, लेकिन फैक्ट ये है कि जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग चल रही है दुनिया में, जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग चल रही है, आपके पोर्टफोलियो में 2 चीज़ें जरूर होनी चाहिए, गोल्ड और बिटकॉइन। तो मैं तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ बिटकॉइन पे, एंड एवरीवन विल एंड अप ओनिंग बिटकॉइन एट द प्राइस दैट दे डिजर्व। जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे उन्होंने 10 सेंट पे खरीदा, कईयों ने $5 पे खरीदा, कईयों ने $5,000 पे खरीदा, कईयों ने $50,000 पे खरीदा, कई लोग $1,00,000 पे खरीदेंगे। Very true. So we'll take, considering the time limits, 2 last questions. Yeah, one more. Sir, your view on dollar. View on? Next coming 3 to 5 years. Dollars? Yeah, view on dollar. Dollar movement, like. US dollar versus INR or Yeah, overall? dollar versus INR INR. versus INR. And second, sir, which sector will outperform in next coming 3 to 5 years? तो I'll let Amit take both of these. Okay, so dollar versus INR, I think dollar has a upper hand for sure, unless we crack a deal in BRICS. Because अभी जितने भी इंडिया करीबन $800 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें लगभग $400 बिलियन तो सिर्फ सॉफ्टवेयर है। हमारा जो शॉर्टकमिंग है वो है कि हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं है, ये हमारा शॉर्टकमिंग है। और मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हम करते भी हैं, हम चाइना से कॉम्पीट कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ स्केल। और बाकी अभी वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मैक्सिको और ये जो कंट्रीज़ हैं, ये हमें बांग्लादेश काफ़ी हद तक कंपटीशन दे रही हैं। तो वहाँ पे कुछ भी कंसिस्टेंटली या सब्सटेंशियली क्रिएट करना मुश्किल है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो एक ही सेक्टर है जो डॉलर कमाता है, वो है सॉफ्टवेयर, लेकिन उसके अंदर अभी काफ़ी चैलेंजेस हैं। सो हमें लगता है कि अभी डॉलर और INR स्पेसिफिक टू दैट रेशियो, आई थिंक रुपया थोड़ा वीक फ्रंट पे ही रहेगा। ऑल्दो आई डोंट वांट, एज एन इंडियन आई डोंट वांट इट टू बी, बट दैट्स अ फैक्ट। उसमें केवल 2 या 3 चेंजेस हो सकते हैं जब ये व्यू चेंज होगा। नंबर 1, हम कोई ब्रिक्स के अंदर लोकल करेंसी में ट्रेड करने का कोई आपस में हम एक अरेंजमेंट कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम ऑयल के इंपोर्ट को 2030 और 2035 तक काफ़ी तक नीचे लेके आ जाते हैं, क्योंकि आज भी हम 70 to 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और ये सबसे बड़ा बिल है। हम गोल्ड को तो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आज मैं मोदी गवर्नमेंट हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, या मैं कोई भी गवर्नमेंट हूँ, वाई टू एक बीजेपी गवर्नमेंट, कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे मंदिरों से कि प्लीज़ आइए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए गोल्ड को मोनेटाइज करने दीजिए मुझे, राइट, रिसाइकिल करने दीजिए। वो तो मेरे हाथ में है, बट ऑयल का मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। गोल्ड में तो स्टिल हमारे पास इतना गोल्ड है कि हम दुनिया को आराम से हम मैनेज कर सकते हैं। बट जहाँ तक ऑयल का सवाल है, जब तक हमारे पास ऑयल की इंडिपेंडेंस नहीं होगी, इंपोर्ट की इंडिपेंडेंस नहीं होगी, तब तक डॉलर रुपये का रेशो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। एंड सेक्टर्स के अंदर आई थिंक कोई भी ऐसे सेक्टर जो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, चाहे वो EV हो या कोई भी सेक्टर जो इंपोर्ट को, या व्हाट वी कॉल दैट, फार्मा में जो अपन यूज़ करते हैं अनुज भाई, API। हाँ, APIs, जो APIs का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करती हो, आई थिंक वो सेक्टर्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म करना चाहिए फ्रॉम 5 to 10 ईयर पर्सपेक्टिव। ये वही व्यू है जो लोगों का 20 साल पहले IT पे हुआ करता था, जहाँ में विजिबिलिटी थी। कोई बाकी सबकी विजिबिलिटी बड़ा मुश्किल होगा इस समय के अंदर। So yeah, thank you for taking us through this. Okay, just in short, yeah, please. This is the last one, and then we'll proceed towards the conclusion of this 4th technical session as well. Thank you so much, Ravi. You've been very kind to me. So one last question. सर, इस रूम में जितने लोग बैठे हैं या पूरे इंडिया में आप किसी को भी क्वेश्चन पूछो लास्ट 2 साल में, सबको पता है कि इंडिया मार्केट का प्रॉब्लम है, FII माल बेच रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट को भी तो पता होगा कि टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, FII माल बेच रहा है। अगर हम लोग इसको कर्व कर सकें तो वी कैन डेफिनेटली आउट परफॉर्म। कोई कमी नहीं है अपने में।
what is stopping the government from, taking proactive steps of doing this? अनुज भाई सीएनबीसी पे नहीं बोल रहे हैं सुबह सुबह गवर्नमेंट के लिए। सर कल सुबह ही बोल अनुज दीजिएगा भाई, over to you। ये अनुज भाई आंसर देंगे वाला। सॉरी, मेरी बात हुई क्या यहाँ पे? मैं नहीं हूँ यहाँ पे। मैं नहीं आया यहाँ पे। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक चीज बताऊं, FIS 2021 में क्या कर रहे थे, 22 में क्या कर रहे थे, 23 में क्या कर रहे थे, 24 में क्या कर रहे थे? चारों साल बेचा FIS ने तो। सर बट इस क्वांटम में थोड़ी बेचा है। नहीं, क्वांटम पता है क्या हो गया असल में, दिक्कत क्या आ गई है, अभी हमको ना एक बलि का बकरा मिल गया है ब्लेम करने के लिए। जब तक हमारा FIS की सेलिंग के बावजूद पैसा बन रहा था, तब तक हम सीना चौड़ा होकर बोलते थे अरे क्या जरूरत है FII की, हम है ना, हम संभाल लेंगे अपना मार्केट। अभी पैसा नहीं बन रहा तो FII क्यों बेच रहा है, FII क्यों बेच रहा है? जब पैसा बन रहा था तब तक कौन FII, कहाँ का FII, किसका FII? तो हमारी ना दिक्कत दो हैं। हम जिस समय मार्केट में रैली हुई थी ना 2021 से जो 23 का फेज था, वो उस समय इसलिए रैली हुई, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट कोविड के बाद बहुत लो था, 8-9 हज़ार की निफ्टी हो गई थी, ठीक है, स्टॉक्स 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 के पी पे आ गए थे, अच्छे स्टॉक, और एकदम से मार्केट में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, चलो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के देखते हैं। वो थोड़ा सा उनका एक बिजनेस लक लग गया, पैसा बन गया। उसके बाद उनको लगा कि अब हमारी मार्केट में FII, हमारी मार्केट की दिक्कत अर्निंग्स ग्रोथ है। हमारी मार्केट, देखिए आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर, ये तो मैं ही बता दूंगा आपको कि बुखार है, आपका डायग्नोसिस होगा, उसमें पता चलेगा कि बुखार क्यों है, कौन सा वायरस है या कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बुखार आ रहा है। FII जो सेलिंग कर रहा है ना, वो बुखार है, हमारी डिसीज है अर्निंग्स ग्रोथ। जिस दिन अर्निंग्स ग्रोथ ठीक हो जाएगी, बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा और यही FII वापस आ जाएंगे। अर्निंग्स ग्रोथ आ जाए, मार्केट की वैल्यूएशन ठीक ठाक हो जाए, ये मार्केट अपने आप चलेगा। और सच बताऊं तो कोरिया की मार्केट देख लीजिए, कोरिया की मार्केट में FII की सेलिंग हमसे ज़्यादा है, उसके बावजूद कोरिया की मार्केट ने 82% के रिटर्न दिए 6 महीने में। हमसे ज़्यादा बेचा है FIS ने कोरिया की मार्केट में, उसके बावजूद। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉफिट देखिए, उनकी एक कंपनी का प्रॉफिट पूरे इंडिया इंक के प्रॉफिट से ज़्यादा है। प्रॉफिट लेके आइए, अपने आप लोग आएंगे आपका स्टॉक दिखाने के लिए। राकेश झुंझुनवाला एक बात कहते थे, हालांकि वो थोड़ी सी सेक्सिस्ट बात थी, कि अगर लड़की सुंदर होगी तो ब्याने वाले आ ही जाएंगे उसको। तो वो अगर आपके अगर कंपनियों के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो लोग आ ही जाएंगे, FIs आ ही जाएंगे। Thank you so much. And Very rightly shared. just one Thank you. thing, one point I would like to make. Just 1 minute. I had the privilege 2 साल पहले I had breakfast with Amit Bhai at HSI. I don't know if he remembers. एक जीतो का इवेंट था. That time he told me कि Hang Seng का ETF, he was very bullish on Hang Seng का ETF, right? तो सर पूरा क्राउड के लिए next 6 months के लिए just one, anything that बन गया 150% भाई। ठीक है। वैसा So I think difficult to answer because वो Hang Seng ETF में 150% बन गया अभी। अब 150% तो भाई पता नहीं कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, आंसर नहीं है अभी। 50% भी सर मुश्किल लग रहा है अभी तो, क्योंकि US का मार्केट अभी बताया ना क्रैश। So I'll park this answer. अभी तो नहीं लग रहा है भाई। ठीक है, thank you. Thank you so much for your time. I now request CA Ravi Sureka to please proceed with the conclusion of this ceremony for the fourth technical session. After the session, we will have group photo session as well. So I'll request all the delegates to be with us. Thank you. A very good evening to everyone. It's my pleasure to propose formal vote of thanks on behalf of BBD Bagh Professional Association. I extend my sincere gratitude to our guest speaker, Sri Anu Singhal ji, Managing Editor of CNBC Awaaz, for deeply sharing insightful and engaging session on the future of capital market and deglobalized world. Sir, your valuable thought and analysis, the evolving global environment and its impact on Indian capital market were truly enlightening. We are very grateful for your time and effort you have taken to share your knowledge and explain with us. I also thanks to Session Chairman Amit Jain ji, Director of Ashika Stock Broking, for gracefully chairing the session.
I thanks to all participants. अच्छा इसके बाद I thanks to all participant delegates and organizing committee to making this session is a grand success. Now I request DN Gupta ji to present memento to our guest speaker as a love and affection. So, now I request Amit Jain ji to present memento. Amit Jain ji, Amit Jain ji to present memento to Amit Jain ji. इसके बाद लॉटरी. आज तो आजा. I thank you once again to all of you. Now, Ravi to take up. So thank you everyone, thank you the delegates for making this 4th BBDVA conference a grand success. May I request all of you to please put your hands together for this wonderful efforts by the entire team. And I wholeheartedly convey our thanks to our distinguished speaker and the session chairperson as well. Now we will have the lottery towards the closing of this ceremony, followed by a group photo thereafter. So I'll request, since we have the opportunity to have with you, and you people are you can say the money makers. So let's see who are the lucky enough to get this lucky draw. So we'll have this lucky draw and then we'll have a group photo session. सॉरी एक दो लाइनें बोल दी हैं मुझे, 2 लाइनें बोल दी हैं मार्केट के लिए, क्योंकि सेशन को थोड़ा हाई नोट पे एंड करना चाहते हैं कि कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा, बेर का सिर्फ टाइम आया है, बुल का दौर आएगा. बहुत शानदार सर. Now we'll have this lucky draw and then we'll have a group photo. Please be with us. I request all the delegates to stay with us. कूपन अगर किसी ने नहीं भी डाले हैं तो प्लीज डाल लो. देखो मार्केट में जैसे इन्वेस्टमेंट टाइम पे होना चाहिए वैसे यहाँ लकी ड्रॉ में भी बॉक्स में अपना कूपन टाइम पे डाल लिया सबने अपना. हाँ जो आपके पास है वो नहीं डालना है प्लीज. ये माइक. अनुज सर, अमित सर, पीपल आर ईगरली वेटिंग कि आप सबकी तकदीर बनाते हो, यहाँ भी थोड़ी बना दो. एंड स्पेशली फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, वी ऑल आर द पार्टिसिपेंट्स. So yes, the wait is over, and the lucky number for the second last silver coin is 059 59. 5959. We'll take 10 seconds, then it's a boogie. It's a boogie. Declared boogie. Sir, एक और लो. All right. So वापस से ये नंबर छूटने वाला नहीं है. इस बार आया है 58. ओह, ये साथ में ही आए थे लगता है. साथ में ही आए थे 58 और 59 वाले. साथ में गए. बूगी. सर एक और. सर हाँ, इस बार चेंज आ गया. काफी बड़ा चेंज आया है. It's a very unique number, and the number is 200. 200. 200. Many congratulations. Many congratulations. Yes, sir. ये ऑडिट होने के बाद ही ड्यू वेरिफिकेशन. We have one more lucky draw. चिंता की बात नहीं, एक और ऑप्शन ओपन है.
One more to go. आ जाओ आखिर भी आ जाओ. And this is the last option, last lucky draw for the 4th annual conference. And again, the number is 03535. आ गए. नहीं 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 नहीं. Boogie, boogie. Boogie. Earlier आए हुए थे. ओके ये लेट वाले हैं जो बहुत बाद में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं. एंड द नंबर इज 312 312. आ गए आ गए. Many congratulations. रवि बहुत बहुत बेनिफिट होगी तेरी. So once again, as the president of this association, I want to thank each one of you for joining this and making it a grand success. I request all of you to please come forward for a group photograph. Please come forward. All of you please come forward for a group photo. Thank you, everyone. Thank you so much. Thanks, everyone. Thank you. We at the VVD Bagh Professional Association, thanks everyone for your wonderful participation and thanks for your support for making this event a grand success. I request committee members to please come forward for the group photo. All committee members, please come forward. All committee members.